My dear students, how are you? I hope you must be in very high spirits. I am again with you with a new topic, and the topic today is satellites. Now, first of all, let us understand what do we mean by a satellite? A body revolving continuously around a comparatively much larger or bigger body is known as a satellite. जब कोई छोटी बॉडी किसी कंपैरेटिवली लार्जर बॉडी के चारों तरफ लगातार रिवॉल्व करती है तो रिवॉल्व करने वाली बॉडी को हम कहते हैं सैटेलाइट। और जिस पाथ पे वो सैटेलाइट रिवॉल्व करता है दैट इज नोन एज द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट। सो द पाथ फॉलोड बाय ए सैटेलाइट or the path along which a satellite moves is known as its orbit. It is generally circular or elliptical in shape. Then there are two types of satellites. Number one, natural satellites, and number two, artificial satellites. Now let us first understand what are natural satellites. An astronomical body which revolves around a planet or any other astronomical body is known as a natural satellite or moon of the given body. जो रिवॉल्व करती है उसको बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट या मून भी कह देते हैं। ये एक तो मून हमारा है, ये तो मून है ही है, लेकिन जो और भी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं उनको भी हम मून्स कह देते हैं। सो जो बॉडी रिवॉल्व करती है किसी दूसरी बॉडी के गिर्द दैट इज नोन एज द नेचुरल सैटेलाइट। और इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, यू नो दैट ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन and therefore all planets are natural satellites of the sun. Moon revolves around the earth, therefore moon is a natural satellite of the earth. Similarly, Jupiter has got about 79 natural satellites which are known, and Saturn has 62 known natural satellites. The actual number may be much more than these numbers. So that means there are many natural satellites in the universe. In fact, there are 6 planetary satellite systems in the solar system which contain 205 known natural satellites. Known natural satellites. Unknown भी हो सकते हैं, लेकिन known जो हैं that is the number is 205. देन सेंट्रीपिटल फोर्स। आपने याद रखना है कि जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उसके लिए एक स्पेशल फोर्स की ज़रूरत होती है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो फोर्स है इट एक्ट्स अलोंग द रेडियस एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई बॉडी सर्कल में मूव नहीं कर सकती। जैसे बिना मेहनत के ज़्यादा नंबर नहीं आ सकते। और आप क्योंकि बहुत अच्छे बच्चे हैं तो आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लें। तो जैसे नंबर लेने के लिए मेहनत ज़रूरी है, इसी तरह सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स ज़रूरी है। सो कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स का उस बॉडी के लिए जो सर्कल में मूव करती है। अब जितने भी ये सैटेलाइट है, whether they are natural or artificial, when they revolve they require centripetal force. And what is the source of that centripetal force? तो आपने याद रखना है सभी सैटेलाइट्स को whether they are natural or artificial, the centripetal force is provided by the gravitational force between the satellite and the body around which it is revolving. So gravitational force, तो मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर बट इट प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। तो आप देख सकते हैं कि ये जो भी हमारा सोलर सिस्टम काम कर रहा है इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। देन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, मैन मेड सैटेलाइट्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसका नाम था स्पुतनिक 1, इट वॉज लॉन्च्ड बाई रशिया ऑन 4th of October 1957. India launched its first artificial satellite named Aryabhat on 19th of April 1975. Then orbital speed or orbital velocity.
The minimum speed required to put a satellite into the given orbit around the earth is known as the orbital speed or the orbital velocity. वो कम से कम स्पीड या वेलोसिटी जो चाहिए किसी सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में डालने के लिए around the earth, that is known as the orbital speed. Now let us derive an expression for the orbital velocity or orbital speed. Suppose a satellite of mass small m is revolving around the earth in an orbit of radius r naught. M is the mass of the earth, capital M. Small m is the mass of the satellite. Capital R is the radius of the earth. H is the height of the satellite above the surface of the earth. इसको हम बोलते हैं altitude of the satellite. Therefore, if V naught is the orbital speed, then the centripetal force required to keep the satellite in its orbit around the earth is mv naught square by r. याद रखना आपने, ये मैंने साइड पे लिख दिया है कि सेंटीपीटल फोर्स का फार्मूला होता है एम वी स्क्र बाई आर. एम इज़ द मास ऑफ दैट बॉडी, यहाँ पे सैटेलाइट हो गया. वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी और स्पीड ऑफ द बॉडी, यहाँ पे वो ऑर्बिटल स्पीड हो गई. और आर जो है रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द बॉडी इज मूविंग, और यहाँ पे वो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट हो गया जिसका नाम मैंने आर ओ रखा है. और it is also equal to mr omega square where omega is the angular velocity of the body. और ये कहाँ से आया फार्मूला, हमें पता कि v इक्वल टू आर ओमेगा होता है. दैट मीन्स लीनियर स्पीड जो है दैट इज रेडियस इनटू एंगुलर स्पीड. तो अगर मैं v की जगह यहाँ आर ओमेगा पुट कर दूँ तो आई विल गेट एम वी स्क्वेयर बाई आर इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वेयर. सो सेंट्रीपिटल फोर्स जो सैटेलाइट को प्रोवाइड करनी पड़ेगी दैट इज एम वी नॉट स्क्वेयर बाई आर. और अभी मैंने आपको बताया कौन प्रोवाइड करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड ग्रेविटेशनल फोर्स यू नो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये मैंने आपको बताया था, ये होती है जी एम एम ओवर आर नॉट स्क्वेयर वेयर कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, capital M is mass of earth, small m is the mass of the satellite and r naught is the radius of the satellite orbit. So r naught एक चला गया और m स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रह गया v नॉट स्क्वेयर इक्वल टू जी एम ओवर आर नॉट एंड देयरफॉर v नॉट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम ओवर आर नॉट. अब देख सकते हैं आप ये जो एक्सप्रेशन आई है फॉर ऑर्बिटल स्पीड, इसमें मास ऑफ द सैटेलाइट नहीं आया. तो मास ऑफ द सैटेलाइट कम हो ज़्यादा हो ऑर्बिटल स्पीड सेम होती है. तो दैट मीन्स इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल स्पीड दैट द ऑर्बिटल स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सैटेलाइट, बट it depends upon the mass of the planet around which it is revolving. In this case, we are taking the planet as Earth. So capital M is the mass of the Earth. And it is inversely proportional to the square root of the radius of the orbit. So जितना radius of orbit कम होगा उतनी orbital speed ज़्यादा होगी and vice versa. अब आप फिगर में देख सकते हैं कि जो R naught है that is radius of the orbit, that is equal to radius of the earth plus height of the satellite above the surface of the earth. That means r naught equal to r plus s. तो यहाँ पे मैंने r naught की जगह पुट कर दिया r plus h, तो v naught आ गया under root of gm over r plus h. Now you know that the acceleration due to gravity on the surface of the earth is given by g equal to gm over r square, or gm आ गया equal to gr square. Now let us put this value of gm in equation 3. और फर्स्ट इन इक्वेशन 2 वी गेट वी नॉट इक्वल टू जी एम की जगह आ गया जी आर स्क्वेयर ओवर आर नॉट. अब आर स्क्वेयर का अंडर रूट आ गया आर इंटू अंडर रूट ऑफ जी ओवर आर नॉट आ गया आर प्लस एच. नाउ इफ एच इज लेस देन आर दैट मीन्स द हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ. अब आपको पता है कि रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर, और जब हम कहते हैं एच इज़ वेरी स्मॉल तो इसका मतलब यह है कि अगर 300-400 किलोमीटर भी हो हाइट, इवन देन 400 किलोमीटर भी इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ विच इज़ 6400 किलोमीटर. देन h can be neglected as compared to r and therefore r plus h is approximately equal to r. So let us put r plus h equal to r in equation 4. So we get v naught equal to r into under root of g over r. r प्लस एच जगह मैंने क्या लिख दिया, अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच की जगह लिख दिया r. अब ये जो r बाहर है स्क्वायर रूट साइन के, इसको मैं अंदर ले जाऊँ तो आ जाएगा g
r square over r. अब एक r से एक r cancel and I am left with v naught equal to under root of gr. So this gives us the orbital speed or velocity of a satellite revolving close to the surface of the earth, and such a satellite is also called near earth satellite. Now you know that the acceleration due to gravity on the surface of the earth is 9.8 meter per second square, and radius of the earth is 6400 kilometer or 6.4 into 10 per 6 meter. So let us put these values in equation 5. We get v naught equal to 9.8 into 6.4 into 10 per 6 under root of this so many meter per second, और ये आ गया 98 इंटू 64 इंटू 10 पावर 4 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया 7 इंटू रूट 2 इंटू 8 इंटू 10 पावर 2 मीटर पर सेकेंड, और अंडर रूट 2 होता है 1.414, वो यहाँ पुट कर दिया, फिर मैंने कैलकुलेट किया तो ये ऑर्बिटल स्पीड आ गई अबाउट 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, एंड विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड. सो रिमेंबर the orbital speed of a satellite revolving very close to the surface of the earth is 8 kilometer per second. You must understand the meaning of very close to the surface of the earth means when the height or altitude of the satellite is very small as compared to the radius of the earth. अगर radius of the orbit ज़्यादा होगा तो orbital velocity कम होगी. So that's all for today. प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है ये लेंथी टॉपिक है. मैंने आज यहाँ तक ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू निकाली है फॉर ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. इसके बाद हम टाइम पीरियड इसका निकालेंगे, हाइट निकालेंगे, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट निकालेंगे, फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पढ़ेंगे. तो इसलिए मैंने इस वीडियो का नाम रखा सैटेलाइट्स नंबर 1 लेक्चर. अब इसके बाद वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. So stay home, stay safe, stay healthy, work hard. Thank you very much.